Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for kind introduction, Chima sir. The topic appears to be very simple but in fact it's not so simple. And so many people in your practice, they are a bit confused between. At times I've seen the people, they are taking the pre-diabetic as a diabetic and treating on the same line as you are treating the diabetic patients. So this is a very common problem, fortunately this is the point where you can manage the things, if you intervene properly, so you can revert back the bad changes or revert back this deadly disease which is called diabetes. So today's topic is pre-diabetes and prevention of diabetes. So first of all, so what is the definition of pre-diabetes? Anybody? They are susceptible to be diabetic in future. So HbA1c should be 5.7 to 6.4 and fasting BSR should be less than 100 and random BSR should be less than I'm talking about what is pre-diabetes. What is pre-diabetes? It's a buffer zone. You see, buffer zone क्या होता है? So for example, diabetes and non-diabetes. If you take an example of the Cold War, if it is Russia on the one side and the one side if you see US whatever, so if there is a zone between, so that zone basically in the midway zone is a night, or you can say if you go to the border near Pakistan Wagah border, there is a small piece of land where there is no man's land. So we are in no man's land. This is pre-diabetes. Either you go on this side or you go to the other side. So this is a kind of a buffer zone. So actually the definition is a pre-diabetes is term to describe the buffer period before the onset of diabetes, and it is a period between the onset of the diabetes and the normalcy. Normal or diabetes होने के दरमियानी जो वक्फा है, it is called the pre-diabetes. So this is actually definition. But it's not so simple. So we have categorized and we can measure exactly what is the pre-diabetes is. So by definition, as Dr. has said, that if you see this, if you take the fasting, the lower panel, which is a green panel, is a normal. What is the normal? So if your sugar fasting is below 100, this one. If it is below 100, this is normal. This is, but remember, this is plasma glucose. I'm not talking about the glucometer reading. This is plasma glucose. This is very necessary. This is a practical practice point that you check them by glucometer and it's a capillary blood. So it is not the true representative. What is not different? 10 to 20% को फर्क आ जाता है. इससे 10 to 20% फर्क आ जाता है. Because you cannot base. Because depend करते हैं सारा. More or less? नहीं, मैं बता रहा हूँ. If it show more reading or less? Venous is very important. So because the venous blood, the plasma blood is more stable. It's more, because if you check with your glucometer, the capillary bloods, you check this minute, you have a different reading, and after 2 minutes you have the different reading. So you cannot rely on that unless it's very high. If your glucometer is telling you 300, 400, eventually the person is dead. But it is checked. If you categorize is clinically and with so precision, so you need plasma glucose. You have to confirm it. So if your fasting is normal, to label a person for a diabetic, it should be less than more than 126. 126. So this in between the period, this is pre-diabetes. This is impaired fasting glucose. We called IFG. तो pre-diabetes के अंदर दो टर्म यूज होती है, एक IFG होती है और एक IGT और IF. Yes. तो second is कि जब आप post 2 hours post meal glucose, जब उसको glucose tolerance test करते हैं, अगर आपका नॉर्मल आदमी का जो मर्जी वो खाए पूरा ग्लूकोज देगा, इट विल नॉट गो बियॉन्ड 140 2 घंटे बाद. पहले तो सारे 180 कहते थे, 140 भी आ गए. 140 है ना, बड़ी देर से 140 है बहुत देर से 140. but if it is above 200, this is overt diabetes. This is overt diabetes if it is above 200, but in between 200 and 140, this is pre-diabetes, or we call impaired glucose tolerance or IGT. So we are using two terminology. IFG कि आपकी शुगर 100 और 126 के दरमियान, 125 कह लें, और ये 140 और 199 के दरमियान है, तो ये दिस इज
impaired glucose tolerance. So this is the, actually it has, pre-diabetes, it has two components, this one and this one, IGT and IFG. तो ये तो सारी क्लियर होगी, बट रिमेंबर ये है डायबिटीज. इफ योर A1C को जब आप लेते हैं, इफ योर A1C इज बिलो 5.7 इट इज नॉर्मल, इफ इट इज अबव 6.8 इट इज डायबिटीज. सो ये जो ग्रे पीरियड है 5.7 to 6.5 दिस इज प्री डायबिटीज व्हेन यू मेजरिंग HbA1c. Okay, this is clear. But one thing with the practice point, any abnormality to be repeated and confirmed on separate day. कोई भी जब भी आपके पास A1C लेके आ जाए, शुगर लेके आ जाए, किसी बंदे को सारी ज़िंदगी का शुगर का ताना देना या शुगर का तमगा देना, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू चेक इट फ्रॉम द अदर साइड, फ्रॉम अ डिफरेंट लैब, और उसको दोबारा चेक करें डिफरेंट ओकेजन पे. और द डायग्नोसिस आल्सो बी मेड ऑन अनइक्विवोकल सिम्टम्स एंड रैंडम प्लाज्मा मोर देन 2. अगर आप करते हो भी आपका शुगर 200 से ऊपर ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली तो आपको शक नहीं रह जाता कि डायबिटीज. लेकिन व्हाट आई सी, मैं मेरी पर्सनल में एग्जांपल देता हूँ. मेरे दोस्त है डॉक्टर है, वो भी तो डॉक्टर साहब आई कि तो कहने उनकी जो एक लैब ने उसकी सूज निकाली कोई 7.2. मैंने कहा गो फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच, गो फॉर आगा खान लेबॉर्ट्री. तो जब उससे आया तो उनका वो प्री डायबिटिक की रेंज में आया. तो सो इट्स बेटर टू चेक इट ट्वाइस एट लीस्ट फ्रॉम द डिफरेंट लैब. सो एक तो ये बात होगी जी. श्योर. सर इसमें बेसिकली 2 गाइडलाइन है हमारे पास, तो हमें कौन सी फॉलो करनी चाहिए? नाइस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए या यूके गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए? देखिए जो यूके ये गाइडलाइन में ना, जो नाइस गाइडलाइन है ना, वो बेसिकली यूके बेस्ड है, अच्छी है, लेकिन उनकी इकोनॉमी और NH सिस्टम को बेस करके उन्होंने बनाई हुई है. उसमें बहुत सारी दवाइयाँ जो पुरानी दवाइयाँ जो उन्होंने रखा है कि इसको सस्ती दवाइयाँ देना, उनकी NH का जब बजट है ना उस पर वो लोड ना पड़े. लेकिन डेफिनेटली जो है कि आप जो यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ये जो आप WHO की गाइडलाइन है वो जी, ये कहते हैं कि आपका जो है ना 1/10 हो जो आपका है, और नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं. दिस इज अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एक है कंट्रोल क्राइटेरिया. वो आप कंट्रोल क्राइटेरिया की मेजर करें. जब कंट्रोल आएंगे ना, जब आप डायबिटीज को कहते हैं इसका अच्छा कंट्रोल है, उसमें और है. इसमें तो मेरा खैर कोई इससे कंट्रोवर्सी नहीं है. जो इससे figures हैं, मतलब एक वो पेशेंट सारी अगर acceptable. देखें, हम कहते हैं कि एक अच्छा कंट्रोल के लेस देन 7% A1C होना चाहिए. तो ये डेफिनेशन में तो नहीं आता ना, वो 6.4. और यही चीज़ चौथाई लेवल कंफ्यूज कर रहे हैं. वो लिखते हैं जी प्री डायबिटीज बंदे का, हम तो देख रहे हैं. उनको ये मेजर करना चाहिए कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एक और चीज़ है और थेराप्यूटिक गोल और चीज़ है. ये दोनों में फ़र्क है. हाँ, वो जो ऑलरेडी डायबिटिक है उनको तो ये बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है. और मैंने एक लेटर भी लिखा, लेकिन उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया आगे से. अच्छा, अब ये जो चीज़ है कि आखिर इसका नुकसान क्या है, व्हाट इज why we are more concerned about the pre-diabetic? Why? What is the drawback? One is going into diabetes. Progression into diabetes सबसे बड़ा, progression into सबसे बड़ा diabetes. concern जो है. What else? So macrovascular complications start with at the pre-diabetic stage. Oh yes, very good. But long-term consequences क्या हैं? You can have hypertension. It is associated pre-diabetes, and you can have cancers like colorectal cancer, stomach cancer, liver cancer, pancreatic cancer, and breast cancer, and or Alzheimer is associated with the pre-diabetes. So you might have not seen previously कि ये जी चीज़ों की भी association है. So you have more issue, around 50% risk of different carcinoma when you are dealing with a person with pre-diabetes. Okay. So everything is clear so far? Okay. So we move further. So आखिर खराबी क्या पैदा, क्या खराबी क्या? दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. व्हेन यू टॉक अबाउट डायबिटीज, वो आप कहते हैं जी बीटा सेल काम नहीं कर रहा और इंसुलिन रेजिस्टेंस है. तो बेसिकली दीज आर द 2 पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म. ये दुनिया में सारे कहते हैं जी बीटा सेल काम नहीं कर रहा, इंसुलिन नहीं बन रही और इंसुलिन रेजिस्टेंस है. सो वी आर टॉकिंग ऑल्सो सो आप कहते हैं जी वो डायबिटीज़ में भी यही है, प्री डायबिटीज़ में भी यही चीज़ है. सो even जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, the onset of pre-diabetes, the insulin resistance starts years before diabetes. साल हर साल हो जाते हैं जब आपकी शुगर की बुनियाद रख दी जाती है. कल मुझसे एक पेशेंट पूछता है, डॉक्टर साहब इसको रिवर्स नहीं कर सकते? मैं कि जब तुम आज मुझे शुगर लेके आए हो, इसकी बुनियाद आज से 10-15 साल पहले रखी गई थी. तो उसको हम 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग को गिराना काफ़ी मुश्किल है.
तो इंसुलिन रेजिस्टेंस स्केलेटल मसल टिश्यू कैन बी रिगार्डेड इनिशिएटिंग फैक्टर। सबसे पहले मसल्स में आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस की 3 जगह हैं। नंबर 1 लिवर, नंबर 2 मसल्स एंड पेरिफेरल टिश्यू यानी फैट में भी आपकी वो आती है। तो उसमें ये है कि ये सबसे पहले मसल्स के अंदर भी शुरू होती है। अच्छा, अब जो चीज़ है वो आपके सामने एक नोवल चीज़ पेश कर रहा हूँ। दिस माइट शुड नॉट बी अवेयर ऑफ दिस इज ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस। ट्विन साइकिल दे डॉक्टर रॉय टेलर है, उनका बहुत मशहूर आर्टिकल हुआ, उस पर बड़ी डिस्कशन हुई। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हम डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स कैसे कर सकते हैं। इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया। व्हाट इज ट्विन साइकिल? ट्विन साइकिल क्या है कि आप जो हम शुरू में ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस कहता है कि जब लॉन्ग टर्म इनटेक ऑफ कैलोरीज, हम बहुत सारा खाना रोटियां चढ़ा रहे होते हैं, खाने खाबे खा रहे होते हैं, तो क्या होता है, ये जो भी कार्बोहाइड्रेट एक्सेस होता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द लिपिड्स, लाइपोजेनेसिस, इसको डी नोवो लाइपोजेनेसिस कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए इट्स अंडरगो टू डी नोवो लाइपोजेनेसिस। तो जब ये पॉजिटिव कैलोरिक बैलेंस होता है तो सबसे पहले आपकी लिवर फैट बनती है। आपने बहुत सारे पेशेंटों को देखा है फैटी लिवर होता है, तो सबसे पहले फैट कहाँ डिपॉजिट होती है? जो एक्स्ट्रा फैट है लिवर में फैट डिपॉजिट हुई है। जब लिवर में फैट डिपॉजिट होती है तो आपका जो इंसुलिन जो कर रही होती है, इंसुलिन का काम क्या होता है कि ग्लूकोज प्रोडक्शन को सप्रेस करती है, ग्लूकोज प्रोडक्शन को तो रेजिस्टेंस टू इंसुलिन सप्रेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो आपकी इंसुलिन की जब ये नहीं हो रहा होता आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो ग्लूकोज लेवल है ये आपके बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है, तो इंसुलिन आपकी सिक्रीशन बढ़ती है शुरू में। अच्छा, यहाँ से इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है। ये लिवर फैट आपकी बढ़ गई, अब इसको कहते हैं ओवरफ्लो थ्योरी। दिस फैट गोज इन फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड इनटू हाइलाइट ट्राइग्लिसराइड एंड गो टू द पैंक्रियास, ठीक है। तो ये है इससे ओवरफ्लो थ्योरी। नाउ दिस फैट गोज इनटू डिपॉजिटेड इनटू द पैंक्रियाटिक सेल्स, तो पैंक्रियाटिक बीटा सेल पे भी कवर चढ़ जाता है उसके फैट का। यू आर डीलिंग विद द फैट ऑफ लिवर, नाउ दिस गोज इनटू दिस एंड बिकॉज डिक्रीज इंसुलिन रिस्पॉन्स टू, जैसे आप जब नॉर्मल खाना खाते हो तो आपके अंदर इंसुलिन बनती है, तो पैंक्रियास ये बनाना बंद कर देता है। तो क्या नतीजा के अंदर आपकी पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल है। सो दिस इज ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस बिकॉज दिस इज नॉट अलोन द लिवर, it is the pancreatic fat as well, which is also responsible and the deposition of the pancreas. So this is twin cycle. This is very popular. It's a hypothesis which you might differ from the opinion. तो उन्होंने इसके एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा मैं उसमें डिटेल में तो नहीं जाता। उन्होंने किया कि लोगों को ग्रुप ऑफ पीपल सेलेक्ट किया जिसको 800-850 कैलोरीज की वेरी लो कैलोरिक डाइट थी। उनके अंदर फैट, बॉडी फैट को कम किया और उनकी जो 60% से लोगों ज़्यादा के लोगों की वो रिवर्स ही होगी, डायबिटीज़ ही खत्म हो गई। So this was the thing. अच्छा, अब ये है even when we're talking about कि डायबिटीज़ होने से पहले your fasting is supposed to be affected first. क्या होता है यहाँ पे आपका ये फास्टिंग 5.5 मिलीमोल है, दिस इज नॉट A1C। जिस बंदे को 14 साल पहले शुगर होनी थी उसकी फास्टिंग का ये लेवल है, ये देखिए। तो शुगर होने से सिर्फ 2 साल पहले उसका लेवल अचानक थोड़ा सा राइज करना शुरू हुआ। ये लिखा हुआ है, ये आप स्टेटमेंट पढ़ें। फॉर मेनी ईयर्स द डेटा फ्रॉम द ये एक स्टडी हुई थी, द चेंज इन द फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग 13 years prior to the onset of diabetes. For many years there is sudden breakdown of the control mechanism around 2 years prior to the diagnosis. यहाँ पे डायग्नोसिस हो रहा है 0 ईयर पे, और यहाँ पे 2 साल पहले ये देखिए शुगर उसका फास्टिंग चढ़ना अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये देखे यहाँ पे उसकी बुनियाद रखी गई थी 14 साल पहले, 13 साल पहले। फॉलो वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इसकी सर क्या रीजन थी सडनली बीटा सेल वो नॉकआउट हो गया ना, बीटा सेल नॉकआउट हो गया, आपका वो लेवल बढ़ना शुरू। अच्छा, अब ये है अगली चीज़, ये ALT का नाम हम सुना, ALT को बड़ा नेगलेक्ट करते हैं, जो LFTs हम करवाते हैं ना। तो ये देखें कि ड्यूरिंग द 18 months प्रायर टू द डायग्नोसिस डायबिटीज स्मॉल सीरम ALT स्टार्ट राइजिंग, ये ALT आपका राइज करना शुरू करता है कुछ लोगों के अंदर। ये देखिए यहाँ पे था
और यहाँ पे ये देखें विद पैसेज ऑफ टाइम जिस दिन डायबिटीज़ 18 महीने पहले उसका ALT राइज हुआ और जिस दिन डायबिटीज़ उसका तो ALT यहाँ पे था। तो ये भी एक बायोमार्कर है जो यूज़ हो सकता है, ALT राइज कर रहा है कि ये बंदे को डायबिटीज़ हो जानी है, फैटी लिवर है, ALT राइज है, इसका मतलब डेफिनेटली तो ये आपके लिए का ALT भी करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ नई चीज़ें जो मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा था। तो ALT लेवल है इसमें कि मेच गो अननोटिस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बट जिनको नहीं डेवलप उनका ALT लेवल देखिए ये नॉर्मल है। ओके, सो व्हाई वी आर हैविंग इट, सो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, सो व्हाई लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर, क्या आखिर शुगर होती क्यों है, प्री डायबिटीज हो क्यों रहा है, क्या क्या चीज़ें बताएंगे, क्या क्या चीज़ें? Environmental effect diet है, lack of exercise, lifestyle modification, diet और stress, environmental stress, environmental stress that lead to sympathetic drive. Sympathetic drive सारी चीजें create problem. Okay, you're all right. But I just go very quick revision of what have you said earlier. So what we see is obesity. ये वो चीज़ें हैं जो आपको, ये मैंने आपकी तस्वीर जो लगाई है ना, तो इट्स अ वेरी टेम्पटिंग पिक्चर एंड यू कैन हैव द क्लियर कट idea that what kind of the food which we people are in habit of consuming. So around 50% of people with type 2 diabetes they are BMI above 30, मोटे होते हैं, और 90% they are not मोटे but they are overweight. अभी उनकी जो BMI around more than 25 होती है लेकिन 30 से कम होती है. So this is very factual that so why I have put this picture on, so you have just some idea that these are things which is very high caloric diet leading to the obesity. Secondly, obesity करती क्या है? चल अभी इससे मैं थोड़ा पीछे करता हूँ कि why we are more concerned with the obesity, why we are क्यों इसमें क्या है? BSC ऑफर करती है रेजिस्टेंस टू इंसुलिन और Inflammatory cytokines. she was right. She is right. देखें obesity, देखें जो हमारी फैट टिश्यू है, this is one of the largest and biggest time bomb which we are hiding inside our bodies. हमारे अंदर जो सबसे बड़ा टाइम बॉम्ब है ये obesity है, मोटापा है, particularly the visceral obesity or the central obesity. सर ये whatever. भी कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, डिसेंटेरिक जो ओबेसिटी है फैट्स में उसी तरफ भी हम उसी तरफ आ रहे हैं. So what do we have? So we have, due to obesity, the level of adipocytes, cytokines, interleukin 1 and interleukin 6 and tumor necrosing factor, they increase in the body. ये क्या है? जो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करते हैं, जो हार्ट डिजीज को प्रमोट करते हैं. They are the pro-inflammatory markers. कौन से? IL-1, IL-6, TNF-alpha, TNF. So basically you are, if you are obese, so you are sitting on a time bomb which can be exploded any time in form of diabetes or in form of heart disease. Clear? यस Okay. ये लाइफस्टाइल, ये हमारा लाइफस्टाइल, दरी बिछी हो, घास पे लेटे हो, मज़े हो, सुकून हो. So might be this to give you a kind of picture आपको थोड़ा सा इस sedentary lifestyle. So does it make any difference? sedentary lifestyle क्या फ़र्क का डालता गया? क्यों होता है? ऐसे होता है? ऐसे होता है कि watching television, ये जो स्टडी मैंने किया उसका रेफरेंस मैं आपको दे सकता हूँ, is one of the major sedentary activities, but I can include this is the mobile, जो आजकल है मोबाइल है. So it is because it is one of the biggest reason, major of sedentary lifestyle. सबसे बड़ी रीज़न है कि टीवी के आगे बैठे हो या मोबाइल पे लगे हैं. दिस इज़ वन ऑफ, मैंने बच्चे आते पीछे कहते मैं वो एक्सरसाइज करो, टाइप 2 बच्चे आते कहते हम तो करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कहते मोबाइल पे खेलते हैं. तो जो है, सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ सेडेंटरी लाइफ, वाचिंग टेलीविजन. सो व्हाट इज़ द रीज़न कि जो होता क्या है कि जब आप मिसाल के तौर पे उठ के गए हैं, टीवी देख रहे हैं, बाहर बेल बजी, आप उठ के गए हैं, तो आपके मसल, देयर इज acute contraction of your active muscle and there is immediate after of the glucose. यानी आपका मसल मूव किया, आपके उठ के चले, कुर्सी से उठे तो आपके मसल ने मूव किया और ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट किया सर्कुलेशन से, तो आपके ग्लूकोज डाउन हुआ. अब तो एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें कहते हैं कि अगर खाना खाने के बाद 2 मिनट की भी वॉक कर लोगे ना, उससे भी फर्क पड़ जाएगा.
उससे भी फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज यू हैव acute contraction and that acute contraction of the muscle it draws it decreases the plasma glucose level. So even अगर एक बंदा जो रेगुलर है, अच्छा मैं उसमें थोड़ा सा अपने एक प्रैक्टिस पॉइंट में आपको ऐड कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं हम तो 30 मिनट्स नहीं होती। एक स्टडी थी वो मैंने उसमें देखा, उसने कहा कि अगर आप इंटरमीडिएट वॉक करें, हर खाने के आधा घंटा बाद 10 मिनट की वॉक कर लें, विच इज़ वेरी पॉसिबल फॉर एवरी वन। कि जो पेशेंट को मैं कहता हूँ तो घर के घड़ी के 10 मिनट टाइमर लगा के 10 मिनट की वॉक, वो सारे मान जाते हैं, उसे मान जाते हैं। तो वो कहते हैं जी हम कर लेंगे, उससे भी आपके ग्लूकोज लेवल को फर्क पड़ता है। डेफिनेटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज़ मोर हार्मफुल। इवन हम जो ADA गाइडलाइन वो कहते हैं कि जब भी आप किसी भी जगह बैठे हैं तो 90 मिनट्स के बाद आपने इस सर्कल को ब्रेक करना। 90 मिनट्स आपने एक जगह पे नहीं बैठे रहना, आपने उठ के दूसरे कमरे में चले जाएं, बाहर चले जाएं, इधर उधर हो आए, कुछ इधर उधर कर लें। लंबी फ्लाइट्स हैं, लंबी फ्लाइट्स हैं, उसमें भी है। तो ये है, सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सेडेंटरी टाइम एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। जितना आपका एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, ये क्या ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो लूज है। ओके, सो रिप्लेसिंग, ये देखिए बंदे का एक्सरसाइज है 30 minutes steady lifestyle with moderate to vigorous physical activity can improve insulin sensitivity by 15%। यानी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। और कैसे इंक्रीज होती है? एक चीज़ बतानी है, लेकिन वो आपके ज़हन वाम गुमान में भी नहीं है। अर्ली स्लीप कुछ को करीब है वैसे। अर्ली राइज इन द मॉर्निंग। अर्ली राइज इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। जो सुबह हम सो के उठते हैं ना, व्हेन द टाइम व्हेन वी ओपन अवर आइज एंड वी गो फॉर द प्रेयर्स, फजर प्रेयर जाते हैं, आंखें खुलती हैं, उस वक्त हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है और स्टीरॉयड लेवल यहाँ होता है। जो हम जाते जब शाम पहुँचती है हमारा स्टीरॉयड कॉर्टिसोल लेवल ऊपर चला जाता है और आपको पता है स्टीरॉयड शुगर बढ़ा। लेकिन स्टीरॉयड तो सुबह कहते हैं 8-9 बजे चेक करो। वो सुबह उसके बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद की बात कर वो। अच्छा, दूसरी जो बात है कि आपका रात को स्टीरॉयड लेवल ज़्यादा बनते हैं और रात का खाना हम लोग डट के खाते हैं और रात को देर तक जागते हैं और सुबह उठते नहीं हैं, तो हर चीज़ नेगेटिव है, एंटी है। सर्ज होती है ना बिफोर हाँ, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी इट इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग अ डॉन पीरियड, जो आपकी जो सुबह अर्ली। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट हर बंदे को करना चाहिए। तो हमारे जो ख़वातीन का विद ड्यू अपॉलजीज ऑफ द लेडीज़, दे डू देयर ब्रेकफास्ट एट 11-12। आप सर्वे कर लें, 12 बजे मेरा नाश्ता हो रहा होता है। अक्सर लोग 12 बजे आजकल जो काम कोई नहीं। हाँ, काम कोई नहीं, ठीक है। तो वो बेसिकली even minute physical activity it can make the difference। 30 minutes भी कर लो पूरे दिन में, वो फर्क पड़ जाएगा। If you let me say one quote, beautiful quote. Besides adding years to your life, exercise can add life to your years. Sure, definitely, definitely। Wonderful, that's fine। Thank you. अच्छा, दूसरी जो है एजिंग। जो हम बूढ़े होते जाते हैं हमारा शुगर होने का चांस बढ़ता जाता है। यू माइट हैव सीन दैट पीपल एट यंगर एज दे हैव वेरी लो इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़, बट विद द एडवांसिंग एज पर्टिकुलरली when you're crossing more than 60, around 25% people they have the diabetes. And that is true for hypertension as well। Yes, similarly, because around so this is the data from US, 4% of people have diabetes age group 18 to 44, and this number increased 17% age of 45 to 64, but above 65, so you have around 1/4. It's 25%. It might be very very high in this part of the world because we are already having 29% people diabetes के साथ। तो यहाँ पे एजिंग के साथ बहुत ज़्यादा great impact। Why? What is the reason? The reason is very simple, because your beta cell gets altered to show insufficient insulin production as the human body ages, and number 2, the most likely pathological reason might be that your human body gets less sensitive to the insulin with the advancing age,
तो ये 2-3 रीज़न है जो जिसमें एजिंग का मशीन भी तो पुरानी हो जाती है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुरा हो जाता है। अब मेरे को रख के सोचे हल्का वेरी राइटली सेड, वेरी राइटली सेड। सेक्स एंड जेंडर, ठीक है, ये भी वेरी करता है, ये भी हमें कंसिडरेशन इसमें आनी चाहिए। सो व्हाट वी हैव, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज नॉट इक्वल बिटवीन मेन एंड वुमेन, दोनों में नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा, जब मैं आई वाज गोइंग थ्रू द डेटा, आई हैव अ बिट माय रिजर्वेशन इन दिस पार्ट ऑफ द, आई थिंक द फीमेल दे आर मोर इन नंबर एज फॉर एज, बिकॉज मेरी जो लिस्ट की सुबह मेरी अपॉइंटमेंट लिस्ट आती है उसमें 80% फीमेल्स होती हैं, 20% जो है ना वो मेल होते हैं। बट एज फार एज द डेटा इज कंसर्न, so there were 17.1 million men, more men diagnosed with diabetes than the women, 22, ये इनका दोनों का फर्क है। The reason is very interesting reason, क्यों होती है उनको? So because the difference in the sex hormones, because उनके hormones different हैं, and specific gene expression of autosomes, and this cause sex hormones and their effect on organ system, automatically men and women have different fat distribution because they have more brown adipose tissue. आपको पता है ना brown adipose tissue और white adipose tissue क्या चीज़ होती है? Brown adipose tissue होती है जो which is a very friendly, because brown उसका कलर इसलिए होता है light brown सा, because the cell, fat cell they contain more mitochondria. तो ये इसके अंदर एडिपोनेक्टिन, एक हार्मोन होता है एडिपोनेक्टिन, जो आपको जो एंटी इन्फ्लामेटरी है। जितना एडिपोनेक्टिन ज़्यादा होगा आपको इन्फ्लामेशन, हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं। सो इफ़ यू आर हैविंग फीमेल, दे आर हैविंग बिट मोर ब्राउन एडिपोज टिश्यू, एंड सेकेंडली men have the more trunk and visceral obesity. हमारे जो मोटापे, मर्दों का मोटापा है वो यहाँ से होता है, फीमेल्स का थाइस पे आता है, लेग्स में होता है ज़्यादा, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन, बिकॉज दिस abdominal obesity is more, and more men have the higher amount of visceral adipose tissue for any amount of the total fat. So women have more deposition of leg fat tissue, and there is a negative relation between activity of BAT, brown adipose tissue, and diabetes risk. जितनी ये फैट ज़्यादा होगी डायबिटीज़ का रिस्क कम होगा। ब्राउन एडिपोज टिश्यू जितनी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी उतने कम होगा। ब्लड प्रेशर, अच्छा मैं इस सारी चीज़ों को ना बहन भाई कहता हूँ। लोग कहते हैं जी मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरे हार्ट डिजीज़ हो गई, मुझे फलां हो गया। मैं कह ये सारे बहन भाई हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, डिस्लिपिडीमिया, और ये सारे बहन भाई हैं, इनमें आपस में बड़ा प्यार है। एक आता है दूसरा भी आ जाता है, तो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, ठीक है। सो ओनली 42% डायबिटिक पेशेंट हैव नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बाकी सबको ब्लड प्रेशर तकरीबन होता है, या ये वाइस वर्सा, ये दोनों ड्यूअल रिलेशनशिप भी है। यानी अगर आपको ब्लड प्रेशर तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज़्यादा है, बल्कि एज एडवांस हो तो इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा उसका सर्कल होता है। स्मोकिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हम ये सोचते थे कि स्मोकिंग का भी शुगर से ताल्लुक है। ये भी एक आपके लिए शायद थोड़ी सी नई चीज़ तो नहीं होगी, वैसे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सो यू नो, इफ समवन इज कंज्यूमिंग मोर 20 सिगरेट्स, एक डब्बी रोज जो पीता है ना, उसको 61% ज़्यादा रिस्क है डायबिटीज़ होने का। अगर उसको शुगर नहीं है तो 61% मोर रिस्क ऑफ हैविंग डायबिटीज़ इफ ही इज कंज्यूमिंग मोर देन 20 सिगरेट्स अ डे। और वो लोग जो 20 से कम पीते हैं उनका 29% हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। वो बताता हूँ, हाई डोज ऑफ इंसुलिन। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, जब पूछोगे स्मोकर है, बिकॉज हाई डोज ऑफ इंसुलिन इज नीडेड टू अचीव द सेम मेटाबॉलिक कंट्रोल smokes compared to the non-smoker. This is because of the insulin insensitivity resulting from the nicotine. क्लियर होगी बात? आपका जो सवाल का जवाब आ गया, ठीक। सो इवन स्मोकर अमंग द पीपल विद नॉर्मल BMI, जिनका BMI नॉर्मल है, स्टडीज हैव फाउंड दैट स्मोकर्स हैव हाई एब्डोमिनल ओबेसिटी देन द नॉन स्मोकर। ये भी दूसरी रीजन है व्हाई दे आर हैविंग मोर डायबिटीज। सो दिस इज अनदर न्यू थिंग व्हिच आई वांटेड टू ऐड इन योर
इसमें कैसे इसका रिलेट करेगी स्मोकिंग के साथ जो iron? ये अनएक्सप्लेन्ड है। इसके बारे में उन्होंने ये सर्वे जो किया कि ये लोग एसोसिएशन, दिस इज नेगेटिव एसोसिएशन। जेनेटिक फैक्टर्स काउंट करता है? बिल्कुल करता है। हैं? बड़े मेरे पास पेशेंट आते हैं जो तो उसके साथ उसका बेटा आया आता है या बेटी आती है, बड़े खुश बैठे होते हैं, अम्मी ने शुगर सानते देगी ठीक है, या आपको को शुगर है मुझे तो नहीं है, अम्मी ने शुगर है खुद वो खावे खा रहे हैं। तो मैंने कहा यार आप भी कुछ ख्याल करें, अपना भी चेक करवाते रहा करें। कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं है, अम्मी ने होगी शुगर, मैंने नहीं की। मैंने कहा यू कैन हैव इट, ठीक है ना, बिकॉज जो हमारी जो आज की भी टॉक है वो इसी पे भी है कि हाउ यू कैन प्रिवेंट इट। हम उससे बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। सो जेनेटिक फैक्टर्स डेफिनेटली 40 जीन्स हैं आपके पास, 40 जीन्स हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए होती हैं। और आपको ये पता है कि पीमा इंडियंस है एक बड़ा नेटिव कबीला है साउथ अमेरिका के अंदर, वेयर ऑलमोस्ट देयर हैविंग वेरी हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़। एंड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको पता है हम जेनेटिकली इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन सबके अंदर जीन्स है डायबिटीज़ की, और सबको डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा है। इवन इफ वी मूव टू द US, इवन वी मूव टू द डिफरेंट एनवायरनमेंट लाइक UK, वहाँ भी जो इंडियंस हैं जो पाकिस्तानी हैं उनको डायबिटीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पीपल विद पेरेंट हैविंग डायबिटीज़ 40% हायर चांस हो, जिसकी अम्मी अबू को है उसको 40% ज़्यादा चांस है उसको डायबिटीज़ होने का। So this is a clinical message or lesson to you people. You educate the relatives of the near one and dear one of your patients that you have more chance to have it. So this is a good example. ये आर्नल्ड को सारे जानते हैं. This is a famous actor and governor of California. ये उसका बच्चे डिवोर्स हो गई तो उसका ये बच्चा इसने आर्नल्ड ने पाला और ये उसकी बेगम ने पाला. You can see the difference. माँ ने परोठे खुआ के की कर देता है तो उधर देखो, ठीक है ना. So there is definitely there is genetics because this is the best. So you can see. मैंने नोट किया है वहाँ पे पोर्शन बहुत बड़े हैं। मैं भी गया हुआ था, इतना बड़ा गिलास, वहाँ पे हर चीज़ का, हर खाने का पोर्शन इतने बड़े हैं। आइसक्रीम भी वो इतनी बड़ी तो आइसक्रीम यहाँ पे जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, वहाँ वो ग्लास से होता है पेप्सी। बिल्कुल. और दूसरे भी जितने पोर्शन है सारी खाने की। So this is a very good example of genetics and interaction between genes and your environment. Because genes were there and the environment basically which is the phenotype which leads to the phenotype. This kind of phenotype because both are having the problem, the genes of obesity, and this person develop more obesity because of environmental factors. So this is a good example. So what is the treatment? क्या है treatment? अब हम we are going to the last portion of Lifestyle change, Weight reduction. exercise, no restriction. तो आपको आता है यार. अच्छा खैर. So there are certain new things which I am going to add into it because into your knowledge. So pre-diabetes के बारे में सबसे खुशखबरी ये है कि it's reversible. This is a good news for the person. And two of the major attributes of IGT and IgG are insulin resistance and decrease in pancreatic cell. तो आपका दो ही चीज़ों पे जोर होता है कि इसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करूं, ठीक है ना, और पैंक्रियाटिक बीटा सेल को हम फंक्शन को इम्प्रूव करें. सो दिस इज योर ट्रीटमेंट इज बेसिकली एम्ड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. So lifestyle intervention. So regular and nutritious dietary advice, particularly देखो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन का नॉलेज आप सबको होना चाहिए, मुझे भी आपको भी, लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर्ड जो डाइटिशियन है उसकी हेल्पफुल है, जैसे डॉक्टर साहब जो हमारे हमजा साहब ने आपने कुछ प्रेजेंटेशन की, प्रॉबेबली उसमें उनका स्ट्रक्चर भी होगा, डाइट के बारे में भी डेफिनेटली होगा, सारी चीज़ों इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़. 3 चीज़ों के बारे में बताना है आपने, और जो आखिरी चीज़ है ये बड़ी ख़तरनाक है, वेट लॉस. ठीक है ना, सबसे मुश्किल काम है वेट लॉस. फिजिकल एक्टिविटी तभी होगी जब आपको चलते हुए दिन की धड़कन तेज रखें, प्लस आपको स्ट्रेचिंग हो. सिंपल वॉकिंग
please, has no role at all. in- Brisk walking. ब्रिस्क वॉकिंग ऑब्वियसली आप सर्टन हार्ट रेट इंक्रीज करें। देखिए वेट लॉस इट्स वेरी इजी टू से, वजन कट करो, ਅਸੀਂ ਕੀ कहने हम पेशेंट को यही कहते हैं कि वजन कम करें, वजन Diet कम control करें, कैसे, diet वजन कैसे कम करें, कितना करें, क्या करें, वी डोंट हैव एनी प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट। अच्छा वेट लॉस के बारे में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे फेस आता है अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि वी हैव ए डिफरेंट मेंटल पिक्चर ऑफ ओबेसिटी। लोग कहते हैं सेहत- ओबेसिटी आप मतलब आपका, मैं एक बंदे से पूछा, मैं कहा ओ यार वजन आपको, ओ डॉक्टर साहब छोड़ो जी, ओ मर्द का वजन 100 किलो तो होना चाहिए ठीक है ना। सो दिस इज द मेंटल पिक्चर दे आर हैविंग। और फीमेल आई कहती, मैं कहा आप बिल्कुल, वो लिटरली शी वाज हैविंग ए वेरी ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट विद मी। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक है, स्मार्ट। डॉक्टर साहब ये क्या किया आप, मेरा वजन कम हो गया, मेरी नौन ही मेरे को डर दी, मेरा रोग ही खत्म हो गया so this is my mindset of the people they are having that they first of all you have a clear mental picture। उसको बताना भी तुम्हें ये वजन होना चाहिए तुम्हारा। nobody knows what is his normal body weight। अगर उसका 10 किलो कम होता है वो कमज़ोर हो, मैंने कमज़ोर, उसको सुबह से शाम तक 10 बंदे मिलेंगे तो बड़ा कमज़ोर हो गया, कमज़ोर हो गया। तू बड़ा कमज़ोर हो गया, तू बड़ा, वो आखिर में आके डॉक्टर को आके डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने मेरे साथ। तो unless you educate the person so this is a very very practical point that you have a different, because I was going up एक सर्वे भी हमने किया कि perception of obesity क्या चीज़ है, लोगों के दिल में obesity का concept क्या है, किस वेट को वो नॉर्मल कह रहे हैं, वो बड़ा डिफरेंट था जो आपके साइंटिफिक वेट होना चाहिए। so what फिजिकल एक्टिविटी क्या करती है कि it improves insulin sensitivity एंड रिड्यूसिंग लाइपोटॉक्सिसिटी इन स्केलेटल मसल। हमने बात की कि स्केलेटल मसल के अंदर जो फैट होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बायस होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि व्हेन यू लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज लो, ये GLU2 GLUT4 जिसको कहते हैं, ये चैनल है जो ग्लूकोज एंट्री का चैनल है, जो सेल के अंदर ग्लूकोज एंट्री को इंक्रीज करता है। ये चैनल बंद रहता है, आप नहीं करते, ये चैनल बंद रहता है। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग इंक्रीज फिर ग्लूट अलाउज ग्लूकोज टू एंटर इनटू द सेल, यानी वो दरवाज़ा ही खुल जाता है, आप दरवाज़ा ही बंद कर देते हो जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जो ग्लूकोज एंट्री का बाइस होता है। सो इनिशियल टारगेट जो वेट के बारे में वेरी स्मॉल, उसको कहिए 1 से 2 पाउंड पर वीक कम कर लो। और जो सादा सा टारगेट है बिल्कुल सिंपल एंड वेरी अप्रोचेबल एंड प्रैक्टिकल इज यू आस्क अ पर्सन रिड्यूस 7% ऑफ योर प्रेजेंट बॉडी वेट, 7% ऑफ योर प्रेजेंट बॉडी वेट, अगर 100 से ऊपर है उसका जो भी है वट है। अच्छा वो अचीवेबल है। मैं एक 100 किलो का बंदा आता है, उसको कोई नहीं तुमने 60 लेके आना, जो 70 लेके, वो डर जाएगा, वो नहीं करेगा, वो कहेगा 7 किलो तो कम करना बात ही कोई नहीं। एंड यू मेक हिम, कि इसको नीचे लेके कैसे आना हाँ है, यू ये सबसे वो बड़ा- उसी तरह यू मेक हिम अंडरस्टैंड इफ यू रिड्यूस, इफ यू कंज्यूम और यू रिड्यूस 3500 कैलोरीज यू विल लूज 1 पाउंड। 3500 कैलोरीज लूज करोगे 1 पाउंड कम होगा। तो आप 3500 कैलोरीज को अगर पूरे हफ्ते में डिवाइड करो तो आपकी ये 500 कैलोरीज पर डे बनती है, ठीक है। अब इसीलिए तो SGLT2 क्यों पॉपुलर है। SGLT2 आपका 100 ग्राम ग्लूकोज रोज यूरिन में पहनते हैं, 400 कैलोरीज रोज होती है, आपका वजन कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी मोर देन 50 मिनट्स पर वीक, 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। मरीज कहते तुरे नहीं जाता, आप क्या कहते हैं? सर कुछ लोग ओबीस होते हैं, उनके ऑस्टियोआर्थ्रोसिस होता है, वो कहते हैं ये मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, वो कहते हैं चला नहीं जाता। लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग से ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मुझे पता लगा लोगों के अंदर हैबिट नहीं है चलने की, बिकॉज अवर रोड्स आर नॉट वॉक फ्रेंडली। ये रोड है ही नहीं है। आप बहुत सारे लोग यूरोप गए होंगे, जितनी सड़क उतने ही आपको फुटपाथ होते हैं। लोग अपने पैदल चलना प्रेफर करते हैं, कोई ट्रेन पकड़ रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लोग अपनी गाड़ी तो जा रहा है, वहाँ पे पार्क करना, ये जो मसाइल है। किसी से पूछे ना डिस्टेंस, वो कहते हैं 20 मिनट्स वॉक। 20 मिनट्स वॉक। तो हमारा ये कल्चर नहीं है, बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज ऑफ द कंडीशन, रोड कंडीशन एंड द ट्रैफिक एज वेल एंड द पोल्यूशन अराउंड अस, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो इवन देन इफ यू आर, कहते हैं उसको, हमने एक और जो मोटिवेशनल फिक्रा में कहते हैं, हम कहते हैं आपने 90 सेकेंड वॉक करनी है। कितनी? 90 सेकंड।
कहते हैं 90 सेकंड डॉक्टर साहब, मेरी गाली कोई नहीं की। 1.5 मिनट कहता है ये तो बात ही कोई नहीं है। मैंने कहा करनी ग्राउंड में जाके 90 सेकंड करनी। तो दिस इज बेसिकली द बिहेवियर चेंज, द माइंडसेट। कि आप जब 90 सेकंड की वॉक के लिए ग्राउंड में जाओगे, गाड़ी पे जाओगे, 90 सेकंड वॉक, आप 90 सेकंड तो नहीं करोगे, बिकॉज यू हैव टू ब्रेक दिस बैरियर, दिस मेंटल बैरियर। एक और जो हम डाइट पे कंट्रोल का कहते हैं, विच हैव लर्न फ्रॉम सम साइकोलॉजिस्ट, वो कहते हैं जो भी खाना खाते हो ना, तुम्हारी प्लेट में खाना डाला और जो सालन पड़ा और उसको आधा छोड़ देना खाने पे, या 1/3 छोड़ देना। तो वो क्यों? वो तो ज़ाया हो जाए, ज़ाया करना रिस्क नहीं ज़ाया करना, मैं को फ्रिज में रखो, अगले खाने के साथ खाओ, ठीक है। तो मैंने लेकिन छोड़ना मन, खाने को ना कहना अगर सीख जाओगे तो आपका बिहेवियर भी चेंज आनी शुरू हो जाएगी। टेम्पटेशंस को ना कहना, और यही चीज़ हमारा मज़हब हमें सिखाता है रमज़ान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको बिल्कुल ओट चले जाते हैं। कि आपके सामने दुनिया की टेम्पटेशन होती है, कंपोनेंट भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि भाई कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, या विटामिन है, मिनरल्स है, हाउ मच दिस कैन बी यूज्ड। अच्छा वो उसमें आ गए। अच्छा दूसरी ये है कि इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी फॉर 150 मिनट्स। वो कैसे करें? 30 मिनट्स फॉर 5 डेज, या 25 मिनट 6 दिन, या आपके पास टाइम नहीं है 50 मिनट्स के 3 सेशन ऑन अल्टरनेट डे। एक बंदा अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो आपके 150 मिनट्स का आपका सिलेबस है, ये आपका कोर्स है विच यू हैव टू कंप्लीट। आर्थराइटिस के पेशेंट को कैसे? अच्छा, और आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, मैं उनको कहता हूँ आप यूट्यूब पे चले जाएं, उसने लिखे एक्सरसाइज इन द रूम, वो आपको 15-20 वीडियोस निकाल देगा, कुर्सी पे बैठ के एक्सरसाइज हो जाती है। योगा इज़ वेरी 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 यूजफुल, अगर आपको आता है, अगर वो सीखते हैं, वो आप उसके लिए आपको कितने बड़े जॉइंट मूवमेंट्स। नहीं ब्रिस्क नहीं, वॉक नहीं, देखें आपने मैं बात करें फिजिकल एक्टिविटी, ये ना जॉगिंग लिखा हुआ है, ना ये दौड़ लिखा हुआ है, ना साइकिलिंग लिखा हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी मैंने चैनल है जेम फिट, हाँ उसको निकालें, आपको हाँ, एक्सरसाइज सारी एक्सरसाइज आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के हो सकती है। तो लेकिन इस यू नीड मोटिवेशन, यू हैव टू ब्रेक दिस बैरियर विच यू हैव इन योर माइंड। ये डॉक्टर साहब जी श्योर। रजिस्टर्ड डाइटिशियंस में क्या वो रजिस्टर्ड डाइटिशियंस ही यूज़ करने चाहिए? बेसिकली आइडियली आपको जो है ना रजिस्टर्ड डाइटिशियन ही जो है ना वो हेल्पफुल होता है, लेकिन पता कि एक और बड़ा प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं, रजिस्टर्ड डाइटिशियन तो हम कह देते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो प्रोटोटाइप किस्म का आपको डाइट चार्ट पर, हर डाइट चार्ट दे दो, वो किसी ने नहीं देखना होता, ना पढ़ना भी नहीं होता, ना किसी ने लगाना होता, बस आप उसको एक मोटी मोटी मेजर चीज़ें बता दो, ये चीज़ें तुमने करनी, ये चीज़ें आप ज़ुबानी बताऊँ, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। वो डाइट चार्ट किसी ने नहीं पढ़ना होता, 5% भी नहीं पढ़ते उसको। अच्छा, रिड्यूस इनटेक बाय 500 to 1000 किलो कैलोरीज पर डे डिपेंडिंग अपॉन योर स्टार्टिंग वेट। आप 500 कैलोरीज का भी फ़र्क डालोगे, 500 कैलोरीज को कम करना पूरी खुराक में से या एक्सरसाइज की सूरत में। रिड्यूस डाइटरी फैट, लिमिट इनटेक ऑफ शुगर स्वीटेड बेवरेजेस। लोग वो भी डाइट भी पी रहे हैं, 0 कैलोरीज है, चीनी वाले पी रहे हैं, यानी वो सारा करके वो कहता है गुलाब जामुन खा के मेरी चाय चीनी ना पाना, ठीक है ना। तो एंड योर फूड शुड कंटेन मोर फाइबर्स, अराउंड 40 grams पर 1000 कैलोरीज के हिसाब से होना चाहिए, और होल ग्रेन्स आर 50% ऑफ ग्रेन इनटेक एंड 5 to 7 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ए डे। ये आइडियली ये होना चाहिए। अच्छा, इसमें से एक और जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट, उसको हम ये है हेल्दी हैबिट्स। ये क्या है? प्लेट। ठीक, 3 हिस्से किए। देखो इसमें जो आपने ना, जो आपकी हाफ प्लेट है ना, ये आपकी वेजिटेबल्स में होना चाहिए। अगर पेशेंट को शौक है सैलड का या इस तरह की चीज़ का, मैं इसकी सबसे बड़ी चीज़ मिसाल देता हूँ जो प्रैक्टिकल है। मैंने कहा आप कभी चले जाएँ सबवे रेस्टोरेंट चेन है, उसको क्या सैलड बना के उसकी आप वीडियो बना लें, उसमें से आप वो सॉसेज निकाल दें, वो जितनी सैलड है वो इतनी अच्छी होती है और इतनी वो टेस्टी है कि वो अगर आप उसको देख लें, घर बना लें और पेशेंट को टीच करें, मेरा बेहतरीन चीज़ है। तो योर हाफ शुड बी फ्रॉम द वेजिटेबल ओरिजिन। ये जो आपका सारी चीज़ें हाफ, अभी उसके बाद इसको और भी कर, हम लोकल, इसको लोकल भी कर सकते हैं, लोकल
और बाकी ये आपकी स्टार्ची फूड है, ये होल ग्रेन हो, हाई फाइबर हो, और ये आपकी प्रोटीन है, इसमें फिश है, मीट है, वॉटेवर है। लेकिन मैंने बहुत उसमें थोड़ा सा गौर किया, अब लोगों से डिस्कस किया, हम क्यों, जो हमारा ओबेसिटी क्यों है, और हमारा खाने पे वो कहते हैं मैं खाना एक रोटी है, मैंने फ़र्क ही नहीं पैदा, मैं खाना पूरे दिन से 2 रोटियाँ खाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने से गौर किया, दिस सालन विच वी टेक दिस इज रिस्पॉन्सिबल। फिर मैंने बेगम से पूछा, कुछ और दोस्तों से पूछा कि सालन बनता कैसे, उसने बताया कि हम इसको हंडिया पे भूनते हैं। तो व्हाट इज हंडिया भूनना? इज फ्राइंग, यू फ्राई योर मीट, यू फ्राई योर वेजिटेबल्स, दाल भाजी तड़का लाता है। 1 gram of fat contains 9 calories. You imagine? हम एक प्लेट सालन की खाते हैं तो आपकी 1000-1200 कैलोरी यही पूरी हो जाती है। तो असूली तौर पे आप जब एक वक्त का खाना खाते हैं तो आपको दूसरे वक्त का खाना नहीं खाना चाहिए। So this is the way. This is not practical, लेकिन I'm just telling the gravity of the problem which we are facing, because we are people, we are fat lover people. हम फैटी खाना खाते हैं, मसाला लवर, वी डोंट नो एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ द फूड। हमें आलू गाजर का सही टेस्ट पता ही नहीं होगा, मसालों का टेस्ट पता है। हमें गोश्त कढ़ाई चिकन का असल टेस्ट शायद पता ही नहीं होगा, हमें चिकन वो फलाने की शनवारी का मज़ेदार नहीं ना बनते। हाँ। इंडियन बड़ा अच्छा मज़ेदार बनाते हैं। अच्छा, लो फैट का हमारी जो फ्राइंग है, हमारी फ्राइंग जो हैबिट है ना, जो खाना बनाने की, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम फॉर द मोर कैलोरीज। अच्छा, अगर इसको हम लोकलाइज करें, अगर जैसे आपने चावल खाना चाहते हैं, मैं कहूँगा जैसे ब्राउन राइस ले लें, इसको 4 हिस्से करते हैं, 3 हिस्से करते हैं इसके। एक हिस्सा आप चावल ले लें, एक हिस्सा आप सलाद ले लें, और एक हिस्सा आपने जो आपने जो सालन वगैरह वो ले लें, इसको ऐसे कर लें, वाई शेप में कर लें। तो इसको डिवाइड करके लें, ठीक है। तो इसको जब प्लेट मेथड में आप जो डिवाइड करेंगे उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़े। हम लोगों में ग्रिलिंग का शौक़ नहीं है, ग्रिल्ड फूड नहीं हम नहीं खाते, बेक्ड फूड नहीं खाते। जो यूरोप के अंदर आपने देखा बहुत सारे लोग, फ्रांस में पर्टिकुलरली, वो सारे बेक्स वेजिटेबल बेक्ड होती हैं, और ग्रिल्ड फूड भी अक्सर होती है। ग्रिल्ड फूड वो इम्पैक्ट नहीं है जो दूसरी फूड जो आप सालन पका के हम खा रहे होते हैं। सो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द प्रॉब्लम विच वी फेस इन आवर प्रैक्टिस। सो सॉरी, इसमें जो चीज़ है जो बड़ी कि 50% डिक्रीज ये है प्रिवेंशन। सिर्फ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन करके आप 58% शुगर होने का ख़तरा आइंदा 3 साल के लिए रोक सकते हैं। इससे ऑलमोस्ट राउंड फिगर रखने 60% आप इंसिडेंस न्यू ऑनसेट डायबिटीज रोक सकते हैं। यू कैन डिक्रीज द प्रोग्रेशन, you can put the brakes on the progression of the diabetes by losing 7% of body weight, by reducing 25% of the calories। जो खाने का चौथा हिस्सा काट दो, खुराक चौथा हिस्सा खुराक में कमी कर दें, शुगर होने का चांस खत्म हो जाएगा। 150 मिनट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर लें, और 16% फ़ायदा हो जाता है शुगर होने का। अगर 1 kg वजन कम करें, 16% आपका रिस्क कम हो जाएगा। ये है वो चीज़ें जिससे आपको प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, एंड वेरी प्रैक्टिकल। चौथा हिस्से मरीज को चौथा जो खाना खाते उसको चौथा हिस्सा कर दो, 7% वज़न कम करें, 150 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें, वज़न 1 किलो भी कम करें, 16% चांस आपका कम हो जाएगा डायबिटीज़ होने का। सो ये दी एफिशिएंसी ऑफ इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंशन, ये भी जेनेटिकली डिफर करते हैं। आप किस लेवल पे शुरू कर रहे हैं। अगर आपकी पुरानी शुगर है ऑब्वियसली उसमें, या पुराना मसला है चला, तो उसमें इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। अच्छा, ये इसके पीछे एविडेंस है जो थोड़ा सा आपको कहेगा, ये खैर डॉक्टर साहब ऐसे बात कर रहे हैं, इसके पीछे एविडेंस है। ये एविडेंस क्या है कि लाइफस्टाइल उन्होंने इंटरवेंशन की, ये 3 स्टडीज़ हैं। ये डार्क विंग स्टडी है, चाइना में हुई थी, फिनिश स्टडी है, डायबिटीज प्रिवेंशन, ये बहुत मशहूर ट्रायल है। और ये जो सारे लोग थे ये IGT थे, ये प्री डायबिटिक थे, ये तीनों ट्रायल के अंदर। तो उन्होंने इंटरवेंशन की, जो मैंने अभी सारी 7% बॉडी वेट कम किया, वो सारी की। तो ट्रीटमेंट उनका 6 साल तक लाइफस्टाइल इंटरवेंशन की, तो 69% लोगों के अंदर रिस्क रिडक्शन हुई। और 20 साल बाद ये फ़ायदा हो रहा था, 34% को स्टिल डायबिटीज़ नहीं हुई थी, ठीक। और फिनिश स्टडी के अंदर 58% आपका रिस्क है। डायबिटीज़ प्रिवेंशन में 3 साल तक शुगर ना होने वाली 58% थी, और 10 साल तक उन्होंने 34% थी। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। उन्होंने कोई दवाई नहीं इसको दी बंद, ठीक है। तो लेकिन आखिर
अब हमारे थोड़ा सा आपको दवाई देनी कौन सी, ठीक, दवाई देनी कौन सी, बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा बहुत सारे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, मैं चाहूँगा कि प्री डायबिटिक को प्लीज़ डोंट प्रिस्क्राइब एनी फार्माकोलॉजिकल अनलेस मैं वो इंडिकेशन बताऊँगा जिस पे आपने दवाइयाँ शुरू करनी है, मेटफॉर्मिन भी नहीं देनी, बिकॉज यू लूज द क्राइटेरिया। अब आपने एक बंदे के A1C 6.1 आपने मेटफॉर्मिन शुरू कर दी, वो तो पता ही लगा शुगर हो ही कदों से, होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो ये अनलेस वो मैं आपसे बात करूंगा अभी कि कब हम शुरू करेंगे, जैसे फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कब होनी चाहिए, नंबर 1 और क्या होनी चाहिए। सबसे जो बड़ी जो आपकी जो है ना वो इस्तेमाल होती है मेटफॉर्मिन, बेस लाइन मेटफॉर्मिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़, वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर कॉमन मेडिकेशन। अगर आपको मेटफॉर्मिन से इंटॉलरेंस है, हम पे भी फंस गए और आप भी फंस गए, सारे फंस गए, शुगर ही नहीं कंट्रोल होती, बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज बहुत कम पेशेंट्स हमने देखा है, मोस्टली दे कैन टॉलरेट मोस्टली। बट मेटफॉर्मिन अच्छा ये मेरे लिए नई चीज़ थी। वो कहता है मेटफॉर्मिन एक्ट कैसे करती है, इट एक्ट्स वाया एनर्जी सेंसर एंजाइम एडिनोसिन फॉस्फो मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, मुश्किल सारे AMPK कहते हैं, एंड इट लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। यानी ये एंजाइम होता है, इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सांस लेता है, यानी काम करता है। तो जब ये आपको ये इसको करता है तो मेटफॉर्मिन क्या करती है, इंसुलिन को सेंसिटाइज करती है। हेपेटोग्लूकोनेज रिक्वायर्स सप्लाई ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ATP, तो मेटफॉर्मिन इस ATP को रिड्यूस कर देती है, तो आपकी हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन कम हो जाती है, ग्लूकोनेजेनेसिस जिसको कहते हैं ना। तो मेटफॉर्मिन एक्सप्लॉइट्स दिस डिमांड ऑफ ATP टू रिड्यूस हेपेटिक ग्लूकोनेज, दिस इज थ्रू दिस एंजाइम। ये आपको शायद थोड़ी सी पता तो होगा, लेकिन What about glycolysis? वो भी आगे उसमें मैं बात करता हूँ। सो मेटफॉर्मिन कब देनी है, ए डोज ऑफ 2 सुबह BD देनी है 850 मिलीग्राम, रिड्यूस द चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 इज फ्रॉम IGT, बट इट हैज़ टू बी, बट आप यू सी जो फ़ायदा आपको लाइफस्टाइल से मिल रहा है वही मेटफॉर्मिन से मिल रहा है। जब आपका BMI 35 से ज़्यादा तब देनी है मेटफॉर्मिन आपको, 35 से ज़्यादा, हाँ ठीक है, एंड एज लेस देन 65 एंड हैविंग फास्टिंग ग्लूकोज मोर देन 110 से अगर आपको ऊपर आ रहा है, आप देखिए 3 क्राइटेरिया हैं, BMI हो, और दूसरा एज उसकी 65 से नीचे हो, तीसरा उसका जो शुगर लेवल आपका फास्टिंग है, उनमें से कोई भी। लेकिन ये है कि मैंने जो सिंपल फार्मूला किया 35 BMI पे मैं आई कैन गो विद इट, आई कैन, बट रियली यू हैव सच बीस पेशेंट, बट यू हैव द पर्सन विद BMI ऑफ TZDs, ये भी दिए जाते हैं प्रिवेंशन के लिए। ये तो वेट इंक्रीज करेगा। वो बात तो यही है। आज मैं एक पेशेंट था, उसको था नैश थी, नॉन फैटी एल्कोहल डिजीज थी, और उसका फाइब्रोस्कैन पे काफ़ी स्लोप थी। तो मैंने कहा ये मज़े की बात है, इसका इलाज है वेट रिडक्शन, हम देते इसके लिए TZD, तो वो वेट इंक्रीज करते तो हम तो फंस जाते हैं। मेरे पास उसका आंसर नहीं था, मैंने ये उससे मरीज से भी ये बात की, TZD बाय वर्किंग मेकिंग एडिपोसाइट लिवर सेल मोर सेंसिटिव इंसुलिन, यानी ये इंक्रीज इंसुलिन से, ये इतनी वंडर ड्रग है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो लोग TZDs पे कंट्रोल हैं उनका इतना अच्छा कंट्रोल है, साल कंट्रोल चल रहा है, उनका A1C नहीं हिलता अपनी जगह से, अनलेस यू बैलेंस इट आउट। मैंने उसका तरीका ढूंढा, वो भी आपसे भी शेयर करता हूँ कैसे उसको रोकना। TZD रीडिस्ट्रीब्यूट फैट फ्रॉम विसरल टू सबकुटेनियस, यानी वो विसरल फैट को निकाल के सबकुटेनियस में ले आते हैं। तो विसरल फैट आपकी कम होगी तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म हाउ दे। तो ये ड्रीम ट्रायल हुआ था, उन्होंने कहा कि अगर TZD यूज़ करते हैं तो 62% रिस्क रिडक्शन हो जाता है। कितना बड़ा रिस्क आपको फर्क पड़ता है, लेकिन वही शर्त है कि यू सिलेक्ट द राइट पर्सन। ये किस में फिर कौन से प्री डायबिटिक में देनी है? ये जिसपे BMI आपका ज़्यादा है, ऑब्वियसली 35 से ज़्यादा है, उसका वेट बढ़ेगा। उसको बैलेंस करने का तरीका वो लाइफस्टाइल के साथ आप लो डोज में दें। मैं वैसे मैं बायोग्लूटाजोन देता हूँ 15 मिलीग्राम, एक गोली से बड़ा ही फर्क पड़ता है 30, ठीक है ना। और वैसे भी क्योंकि आपके बीटा सेल को इतना कुछ नहीं कहती, ये आपके इंसुलिन एग्जॉस्शन नहीं होती। दूसरी जो चीज़ है ना हमारे पास है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, कार्बोस, ठीक है ना, ग्लूकोबेन। उन्होंने एक ट्रायल हुआ स्टॉप लिडम ट्रायल,
उसमें 3.3 ईयर्स के लिए हुआ, उसमें ये 25% इसने IGT वाले को रोका ये, ठीक है। टॉलरेंस की प्रॉब्लम, टॉलरेंस का बड़ा इशू है गैस का। गैस है। अच्छा, अब इस सवाल में आता हूँ कि TGD, चीमन साहब का सवाल था कि TGD से वेट बढ़ता है, लेकिन मैं प्री डायबिटिक में TGD दिया जा सकता है दिल पे थोड़ा सा हाथ, ताकि मरीज़ अगर जो एक्टिव हो और वो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सके, वेट को अपने मैनेज कर सके। 15 से इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो अगर डायबिटिक है, अगर आप उसको TGD देना चाह रहे हैं उसको आप SGLT2 के साथ दें और मेटफॉर्मिन के साथ, उसको काउंटर कर वो यस बड़ा सही आता है, वेट नहीं बढ़ता। ठीक है। ठीक है ना। सो दिस इज माई प्रैक्टिकल। अच्छा, इसका आपका कैसा एक्सपीरियंस? बहुत बुरा बहुत बुरा, लेकिन आई स्टार्ट, हमने तो लिखना छोड़ दिया है। 25 मिलीग्राम से शुरू करता हूँ विद द फर्स्ट बाइट ऑफ द मील, 25 यानी 50 वाली आधी करके देता हूँ, लेकिन मरीज को बता दिया जाता है, लेकिन वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट बिकॉज फ्लैचुलेंस और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेन, बट इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। यानी ये आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ रोकनी हो तो ये आपके बीटा सेल कुछ नहीं कहती, ठीक है। एक और कंडीशन में होती है, ये इसको यूज़ किया मैंने, बड़ा अच्छा रिजल्ट है वो भी। मैं थोड़ा सा आपके साथ प्रैक्टिकल चीज़ें भी डिस्कस कर रहा हूँ अपनी क्लिनिकल में। देखिए बहुत सारे आपके पास पेशेंट आते हैं, मेरे पास बहुत बड़े कुछ लोग भी आए, उनको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया था। सुना ना कभी रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया? नहीं सुना। पेशेंट आपके पास भी आते होंगे, डॉक्टर साहब मीठा खाने नाल शुगर लो हो जाता है, शुगर नॉन डायबिटिक है, रोटी खाता हूँ खाना तो शुगर लो हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। वो क्या होता है कि दे आर मेंटली डिस्टर्ब, एंग्जाइटी प्रोन होते हैं, इंटेस्टाइन मोटिलिटी इंक्रीज होती है। वो जब आपका इंटेस्टाइन में मैदे में खाना जाता है तो वो इंसुलिन को स्टिमुलेट कर देता है, खाना आगे चला जाता है, पीछे से वो खाली रह जाता है, तो इंसुलिन आ जाती है। तो ये मेरे लिए बड़ा पेशेंट, ये हमारे बहुत ज़्यादा साहब तो उसमें DPP-4 का भी रोल होगा। DPP-4 जो है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। उसके लिए फिर मैंने उसको स्टडी किया कि इसकी वजह क्या है। हम वो क्यों होता है कि जब आप जितना वो लोग मरीज़ क्या करता है, वो और मीठा खाता है और उसकी शुगर लो होती है। अब आपके ज़हन में सवाल है कि इंसुलिनोमा क्यों नहीं हो सकता, कि इंसुलिन ट्यूमर क्यों नहीं हो सकता। इंसुलिनोमा में फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है, पोस्ट प्रेंडियल नहीं होता। पोस्ट प्रेंडियल अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया मिले नॉर्मल आदमी के अंदर, तो आप रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया उसको लेबल करें। उसमें फिर क्या उसका क्या है कि वो मरीज़, उसका क्या आता है, मरीज़ और खजूरें खाता है और मीठा खाता है और स्टिमुलेशन होती है इंसुलिन की। तो सबसे पहले उसको कोई ना कोई एंग्जोलिटिक, ट्रैंकुलाइजर, इस तरह की ज़रूर दें, एंटी डिप्रेसेंट भी दें। मेरे पास एक डॉक्टर साहब थी, उनकी बेटी थी, वो उसका फाइनल का पेपर था, उसको ऐसे ही हो रहा था, तो उसको मैंने एंटी डिप्रेसेंट ऐड किया, डिपेक्स ऐड किया, साथ मैंने कुछ ग्लूकोबे ये आप दो, क्योंकि ये ग्लूकोज का जवाब ही नहीं होने देना इसने, तो वो आपको स्टिमुलेट ही नहीं करेंगे इंसुलिन की सिक्रीशन, ठीक है ना। तो ये इसका इलाज है, लो डोज। ये मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल टिप है ये आपको दी, थैंक यू। ठीक है ना। अच्छा, अब ये दवाइयों का क्या फ़र्क है। मेटफॉर्मिन जिन लोगों को दी गई प्री डायबिटिक के अंदर, उसमें 3 साल बाद 31% इंसिडेंस हुई। ये देखें, ये कम है लाइफस्टाइल से, जो लाइफस्टाइल का फ़र्क देखें और इसका फ़र्क देखें, दवाई का फ़र्क फिर भी कम है। और 10 ईयर्स 18%, ड्रीम ट्रायल में 60%, इसमें काफ़ी ज़्यादा रोजीग्लिटाजोल के साथ एक ऑलमोस्ट 21% और पायोग्लिटाजोल के साथ 81% एक्ट नाउ स्टडी थी। ये सारे IFG ये रोजीग्लिटाजोल अब दोबारा यूज में अब तो नहीं यूज़ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने दोबारा कुछ करने की कोशिश की। कंडीशनल उसको अलाउ किया था। हाँ, नहीं वजह नहीं होती। अच्छा, बाकी एंटी ओबेसिटी ड्रग जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो जेनिकॉल है, ठीक है ना। तो उसके साथ भी ट्रायल है कि वो भी रिड्यूस करने का आपका, उसमें 37% ओवर 4 ईयर्स ट्रीटमेंट के साथ ये भी कम करते हैं। अगर प्री डायबिटिक में यूज़ करनी पड़े मोटे बंदे के अंदर, ये यूज़ कर सकते हैं आप। ऑर्लिस्टैट के नाम से आती है, ऑर्लिस्टैट ऑर्सलिम के नाम से भी है। ऑर्सलिम में आपकी शायद मुख्तलिफ नाम कंपनी 35 ऑब्वियसली ओबेसिटी में। वैसे इसको तो आप किसी भी मोटे बंदे के अंदर यूज़ कर सकते हो एंड ओवरवेट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। फैट ऑब्जर्प्शन को ही रोकना है। अच्छा, ये बेसिकली ना लोग इसको कहते हैं फैट, वो इसमें ये बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं। पेशेंट जब भी फैटी मील लेगा उसको वो फैटी स्टूल पास करेगा, वो अवॉइड करना शुरू कर देता है फैट को, वो सीख जाता है। ये भी एक इनडायरेक्ट वे होता है, ठीक। सो लास्ट फ्यू स्लाइड्स आई विल गो फर्दर। बेरियाट्रिक सर्जरी का नाम सुना हुआ है, ये सर्जरी आजकल यूज़ होती है डायबिटीज़ को रोकने के लिए। प्री डायबिटिक में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। यानी 75% रिडक्शन ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी, 75%। एंड इन अदर स्टडी में 78% डायबिटिक एंड 98% प्री डायबिटिक सब्जेक्ट्स में ये इसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है इसके अंदर,
तो सर्जरी इसमें 3-4 किस्म की सर्जरी होती है, आपको पता ही होगा सर सबको। सबसे पावर जो यूज़ ये होती है, ये लेप्रोस्कोपी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। ये देखिए मेरे को काट के इतना छोटा कर दिया, परमानेंटली रिमूव द मोस्ट ऑफ द स्टमक लीविंग ए स्लीव शेप पाउच, ये वाला पाउच रह गया, रिजल्टिंग इन डिक्रीज गर्लिंग, ये हंगर हार्मोन, ये आपकी भूख को बढ़ाता है। तो यहाँ से वो भूख, ये वाला हार्मोन कम बनना शुरू होता है, आपको भूख कम लगती है, और वैसे भी स्टमक का साइज छोटा हो जाता है। और वेट लॉस 28% बॉडी वेट लॉस होता है 1 साल के अंदर, और 59% ऑफ टोटल प्रोसीजर यही हो रहे हैं आजकल ज़्यादा। सेकेंडली एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड, यानी ये गैस्ट्रिक बैंड लगा देते हैं, उसमें भी स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं। इसके साथ 14 से 30% बॉडी वेट रिडक्शन। और ये है रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये स्टमक को यहाँ अकेला छोड़ देते हैं, यहाँ से खाना निकला ये स्टमक के तौर पे काम करता है, और ये तो सीधा इंटेस्टाइन में पहुँचा देते हैं। उसकी जो बाइल वगैरह किधर से फिर आता है? बाइल को रखा हो ना, ये इंटेक्ट है ना, ये यहाँ से बाइल इंटेक्ट रखा ना, ये रखा ना कि क्रिएट्स स्मॉलर पाउच बाईपास पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, रिजल्ट इंक्रीज से GLP-1 ज़्यादा हो जाता है, स्टाइटी हार्मोन ज़्यादा इससे हो जाता है, और यहाँ से उन्होंने उस स्टम्प पर रखा हुआ है। और ये सॉरी बंद हो गया, वही हो गया। अच्छा, बाइलो पैंक्रियाटिक डाइवर्शन, इसमें भी रू एंड वाई का है। ए वेरिएंट इज कॉल्ड ड्यूटनल स्विच, रिटेन्स द पाइलोरिक वाल्व, ये इस पर ये 1% होता है, बहुत कॉमन है, ये फ़ायदे नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोसीजर है, ये ज़्यादा ये वाला स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। ये आपको प्रोसीजर पता लग गया, ये है। तो फ़ायदा क्या होता है? रिमिशन ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ ही ख़त्म होगी। वो तो वेट लॉस से भी खत्म हो सकती है। नहीं, आप सर्जरी हुई ना, 2 इफेक्ट हैं इसके। एक है इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट होता है कि आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हुई थी या डोज, लेकिन लोग ना 15-15 साल से शुगर चल रही है, उसका वो सर्जरी के लिए भेज रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। उसमें एक रिस्पॉन्स 40% 50% है। जिसको न्यूली डायग्नोज पेशेंट है, ग्रॉसली ओबीस पेशेंट है, इज ए बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस सर्जरी। ठीक है ना, ये 2 चीज़ें हैं। देखें 57% ऑफ पाकिस्तान विद डायबिटीज अचीव्ड रिमिशन आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी एंड 22% रीच रिमिशन आफ्टर लैब बैंड सर्जरी। Both procedure remission was more common in younger participants and those who had diabetes for shorter period of time. जिसको 2 साल हुए, 6 महीने हुए, उसको अकल आ गई, ऑपरेशन करा लिए, ठीक हो गया। So this is the story of success that you have, and just to summarize what we have learned today, we have learned the exact definition of pre-diabetes, what are the consequences of the diabetes, what is the underlying pathophysiology of diabetes and pre-diabetes, and how we can treat, what is the importance of lifestyle modification, what medications we are using, and in the end, thank you very much for your kind attention. इम्पेयर्ड होता है 100 से 125 के दरमियान। अगर आपका प्लाज्मा ग्लूकोज है, दिस इज इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। मेरा ख्याल है। क्वेश्चन जी बताइए। ये फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज नॉट कंट्रोल्ड, और दी जो पोस्टप्रांडियल है वो कंट्रोल हो जाता है ग्लूकोज से, लेकिन जब भी फास्टिंग करें 150, 180, 190 एक्सरसाइज भी होती है, एक्सरसाइज करने के बाद भी वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद सेटल करता है। लेकिन जब भी द पर्सन फील हंग्री और फास्टिंग लेवल पे है तो उसका ग्लूकोज लेवल हमेशा ज़्यादा होता है। देखिए फास्टिंग इवनिंग की डोज बढ़ा दें। नहीं, फास्टिंग ग्लूकोज नहीं, फास्टिंग ग्लूकोज, मैनेजिंग द फास्टिंग ग्लूकोज इज a real challenge in diabetes management. I know that. So there are 3 reasons for that. Number 1, the meal which you have taken. At what time you have taken the meal, your dinner? What were the content of your meal at the, because in Pakistan, which is usual practice, your best meal is your dinner, because all the family members, they are free from their work and home, they come home with the hungry, with the hunger pains, ठीक है, उसके साथ आ रहे हैं, तो सब कुछ जो पड़ा होता है वो खाना होता है। And most of the time it is the plain white rice which have very high glycemic index, it is being consumed at night. So these are one factor, this is one, food is one factor. Second, your hepatic glucose output, which is more during night time, if it is unchecked. ठीक? Number 3, your cortisol level.
which is more. And how it happens? You watch television all whole of the night. पॉलिटिकल टॉक शोज लगे हुए हैं, ड्रामे लगे हुए हैं, औरतें ड्रामे देख रहे हैं, बंदे पॉलिटिकल शो देख रहे हैं, 2 बजे से पहले सोता कोई नहीं, मुझे बताएं, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, तो उसको मैं से मैनेज करता हूँ, इसको स्टेप वाइज मैनेज करें। एक तो अपना मील कंटेंट, आई आस्क माई पेशेंट टू टेक मील इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, हैव ए गुड ब्रेकफास्ट, moderate lunch, very light dinner, very light in descending order. Second, consume more कार्बोहाइड्रेट, जो आपके जो ग्रेन्स वाले जिसमें हाई, जिसमें आप चावल वगैरह इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, वेजिटेबल्स है जिस तरह की चीज़ें लें, उससे आपकी फिलिंग आपका इफेक्ट है। सेकेंडली, यू कैन इंक्रीज द डोज ऑफ मेटफॉर्मिन, बिकॉज मेटफॉर्मिन मैंने बताया कि हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को इंक्रीज, फिर भी नहीं होती, आप बेजल इंसुलिन जिसको बंदे को इंडिकेटेड वो शुरू की जा सकती है। दूसरा, सोने जागने की आदतें बेहतर करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Thank you very much.